Hey, good morning, my dear student, and once again I welcome you all in your English class. My dear students, today we are going to read the chapter number 3 from your supplementary reader book, which name is The Desert. So let us see what is in the chapter, what is this story is all about, what you will come to know, what are the facts about the desert this story is going to tell you. So let's figure out. A desert is generally without water and vegetation, a green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. यहाँ पर बता जाया जा रहा है कि डेजर्ट आखिर होता कैसा है, रेगिस्तान दिखता कैसा है, वहाँ लोग रहते कैसे हैं, वहाँ के पेड़ कैसे सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, वहाँ पेड़ होते हैं कि नहीं, पानी होता है कि नहीं, लोगों के दिमाग में डेजर्ट के बारे में क्या मिथ्स होते हैं, ये सब आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि वो कुछ गर्म भी होते हैं तो कुछ ठंडे भी होते हैं, वहाँ पानी भी होता है, पेड़ भी होते हैं, लोग वहाँ पर रहने के अपने अपने तरीके अडाप्ट करते हैं, तो वहाँ की भी अपनी एक खूबसूरती होती है जिसके बारे में इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and there no vegetation grows. जो लोग पेड़ों के पास रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, सर्दी वाले इलाकों में रहते हैं, बर्फीली जगहों में रहते हैं, हरे भरे जंगलों से घिरी हुई जगहों में रहते हैं, उन लोगों के दिमाग में जनरली ये मिथ होता है कि रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ ना पेड़ होता है, ना ढंग से पानी होता है, ना रहने खाने के लिए वहाँ पे सब्जियाँ मिलती, ना भाजियाँ मिलती हैं। उनके दिमाग में एक इस तरह का मिथ होता है कि रेगिस्तान में रहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगिस्तान की अपनी भी एक खूबसूरती होती है, वहाँ भी खाने पीने के लायक पानी होता है, पेड़ होते हैं, पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं। वहाँ के लोग उस हिसाब से अपने आप को रहने के लिए ढाल लेते हैं और रेगिस्तान में भी अगर आप रहने को जाएं तो आप ये यकीन कर पाएंगे, ये महसूस कर पाएंगे कि इसकी भी अपनी एक खूबसूरती है जिसका एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। It is dry, hot, waterless, without shelter, but this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful palace. It is the home of a variety of people, animal, plant that have learned to live under the hot and dry condition. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plant, trees, as is in the other climate, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and sight can be rewarding as that of the tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It is have a oasis big and small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well grapes plant and a tree is better change to grow. A desert may be hot like the Thar or a cold like a Ladakh, but generally people speaking, if a place has a little or no water vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong wind blows, raising heap of a sand and depositing them as a mound. They are called a sand dune. The shift move endlessly across the desert. Blue plant can survive on such dry shifting sand. तो लोगों के मन में जो धारणा होती है कि नहीं भाई डेजर्ट में सिर्फ रेत होती है, गर्मी होती है, पेड़ नहीं होते, खाने को फल नहीं होते, ये गलत है। तो आइए देखते हैं डेजर्ट आखिर होगा क्या है। तो दोस्तों मेरे बच्चों, डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर केवल रेत ही रेत होती है। मौसम बाकी जगहों के कंपैरिजन में थोड़ा गर्म होता है, लेकिन वहाँ मौसम हमेशा ही ऐसा रहता है, ये बात सही नहीं है। वहाँ का मौसम दिन में गर्म तो रात में ठंडा हो जाया करता है। वहाँ पर भी जब थोड़ी बहुत बारिश के दिनों में बारिश होती है तो हरियाली आती है, वहाँ पर थोड़े बहुत पानी हो जाते हैं और वहाँ पर भी मौसम देखने लायक होता है। तो आप अगर सही समय पे वहाँ पे जाएंगे बारिश के कुछ बाद, तो आप ये देख पाएंगे कि वहाँ पे भी हरियाली होती है। डेजर्ट में सिर्फ रेत ही रेत होती है, ये बात गलत है। डेजर्ट में पहाड़ भी होते हैं, लेकिन वो किसके पहाड़ होते हैं? वो रेत के पहाड़ होते हैं। जब गर्मी में या ठंड के दिनों में वहाँ पर बहुत तेज हवाएं बहती हैं तो रेत को अपने साथ उड़ा ले जाती है और एक जगह पर इकट्ठा छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से रेत का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पहाड़ की तरह बन जाता है और रेत से बनने वाले पहाड़ को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, और यही होते हैं रेत के पहाड़। तो रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होते ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी पहाड़ होते हैं जो रेत के बने हुए थे, इनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। और जब वहाँ पे हल्की हल्की बारिश होती है तो उस बारिश के होने की वजह से एक छोटा सा तालाब सा बन जाता है और उसके चारों ओर थोड़े बहुत पेड़ खिल उठते हैं और हरियाली और घास आ जाती है और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओएसिस। तो
कहने का मतलब ये है कि रेगिस्तान में पानी नहीं होता, हरियाली नहीं होती, ये गलत बात है। थोड़ी सी बारिश आने पर रेगिस्तान में भी पानी जो है वो जमा हो जाता है और उसके इर्द गिर्द छोटे बहुत घास फूस और पेड़ उग जाते हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है पानी से भरी हुई एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से रेत से घिरी हुई होती है, जहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ होते हैं और थोड़े बहुत घास होते हैं। ऐसी जगहों पर ही जो राही होते हैं, जो पाथगीर होते हैं, है ना, चलने वाले लोग होते हैं, जो ऊँट होते हैं, जो कैमल्स होते हैं, वहाँ पर पानी पीने आया करते हैं। तो रेगिस्तान में भी सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के पहाड़ होते हैं और ओएसिस यानी कि छोटा सा तालाब होता है, छोटी सी झील आप कह लीजिए, जो चारों ओर से रेत से घिरी हुई होती है। तो रेगिस्तान भी अपने आप में खूबसूरत होता है, यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर ऑर्डर टू सर्वाइव. The few plant and animal that live in desert have developed the ability to require less water than the most of the plant and the animal. The camel, popularly known as the sheep of the desert, can drink a lot of water at once. Camel can do without water for nights and days. The reason is that they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot and this cools the body. Camel can stand high body temperature. They don't need to sweat and can thereafter retain the water they drink for a long period of time. The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot and the days and come out at the night to eat some. Some of them eat other animals to get water than they need, and the other eat the plants by which their need of the water is completed. Desert plants also adapt themselves to the life they had. Cactus plants store water in their thick stem. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains and that occasionally fall. The major feature of the desert is, of course, dryness and variation of temperature. In the humid climate, the moisture in the air acts like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at the night. Deserts are important part of nature grid plan. They are like dense forest and the deep ocean. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर अब आपको बताया गया कि किस तरह वहाँ पे रेत के पहाड़ बनते हैं, ओएसिस बनता है। अब आपके यहाँ बताया जाएगा कि किस तरह वहाँ पे रहने वाले जानवर, वहाँ पे रहने वाले जो पेड़ होते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखते हैं हम शिप ऑफ द डेजर्ट के बारे में, यानी कि रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज वहाँ पे कोई चलने वाला जहाज नहीं है, बल्कि वहाँ पर रहने वाला एक जानवर है कैमल। कैमल को हम बोलचाल की भाषा में शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट? क्योंकि जो कैमल होता है वो रेगिस्तानी वाले इलाकों में रेत में इतनी तेजी से दौड़ता है मानो कोई समुद्र में कोई जहाज दौड़ रहा हो। तो शिप के इसी कलाकारी की वजह से उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। शिप जो होता है बच्चों, एक बार में बहुत सारा पानी पीने की कैपेबिलिटी रखता है। एक बार जब वो जी भर के पानी पी लेता है तो फिर उसको 3 से 4 महीने तक पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिप के बॉडी में पसीना नहीं निकलता। उसके बॉडी का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि ज़्यादा पसीना उसके बॉडी में नहीं निकलता और इस वजह से उसका पिया हुआ पानी पसीने के रूप में जो है वो लॉस नहीं होता और उस पानी को वो अपनी प्यास बुझाने के लिए अगले 3-4 महीने तक यूज़ करता रहता है। शीप के बॉडी में इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि पसीना ना निकले और उसकी पीठ पे जो कुबड़ निकला होता है, जो हीप निकला होता है, उसमें वो सारा का सारा पानी जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिससे 3-4 महीने तक उस पानी को वो क्या करता है, अपनी प्यास बुझाने के लिए यूज़ करते रहता है। जो शिप होते हैं वो अपने आप को रेगिस्तानी वाले इलाकों में रहने के लिए आदी कर लेते हैं। वो इस तरह के स्ट्रक्चर में ढल जाते हैं और यह महसूस कर पाते हैं कि उनको इसीलिए बनाया गया है कि कम पानी में भी वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके। और केवल शिप ही नहीं होता जो वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल चुका होता है, बल्कि और भी कई जानवर होते हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे, जो वहाँ की गर्मी और वहाँ पे पड़ने वाली रात की ठंडी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। दिन में जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो ये सारे सारे जानवर जो छोटे होते हैं शाइप और शेप में, वो रेत के अंदर गुफा बना लेते हैं और उस गुफा में जाकर के, उस डेजर्ट में जाकर के, उस बिल में जाकर के छुप जाते हैं। और जैसे ही रात को ठंडा मौसम होता है, अपने उस बिल से बाहर निकल के आते हैं और एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खाता है। कुछ जानवर पेड़ों को खाते हैं, घास फूस को खाते हैं,
तो होता क्या है, इस तरह से वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनको अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। एक जानवर जब दूसरे जानवर को मार कर खाता है तो उसके बॉडी में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो भी वो पी लेता है और वही मॉइस्चर उसकी प्यास को बुझा देता है, जिससे उस केकड़े को, वहाँ पर रहने वाले सांप को, रेटल स्नेक को, दूसरे जानवरों को खा करके उनकी पानी की जो प्यास होती है वो बुझ जाती है और उनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक ऐसे ही वहाँ पर रहने वाले पेड़ भी करते हैं। वो पेड़ अपने आप को वहाँ की ठंडी और गर्मी के हिसाब से ढाल लेते हैं और उनको भी पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो कैक्टस नाम का वहाँ पे पेड़ होता है, उसकी जो जड़ होती है ज़मीन के बहुत पास होती है। दिन में जब वहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है तो उस गर्मी में से उस नमी को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उस पेड़ को पानी मिल जाता है। और पानी मिल जाने की वजह से उनकी जड़ें जो होती हैं उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनके जो स्टेम्स होते हैं वो कांटों के रूप में उस कैक्टस के ऊपर निकल कर आ जाते हैं। पत्ती के रूप में वो क्या करते हैं, उस पड़ने वाली गर्मी से वो जो है अपना खाना बनाने का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो देखिए किस तरह से कैक्टस के पेड़ की जड़ों ने और उसके स्टेम्स ने कांटों में बदल करके वहाँ की गर्मी को, मॉइस्चर को अडाप्ट किया और पेड़ उस गर्मी में सर्वाइव कर पाया। तो हर जानवर की, हर पेड़ की अपनी एक टेक्निक होती है इस गर्मी में सर्वाइव करने की, और लोग वहाँ पर, ये जानवर वहाँ पर इसी तरह सर्वाइव कर पाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर और क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, in the humid climate, the moisture in the air act like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. अब क्या होता है बच्चों, वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है, हवा में जो नमी होती है, वो नमी पूरे के पूरे ब्लैंकेट की तरह रेगिस्तान में फैली होती है और सूरज के पड़ने वाली गर्म किरणों को रेगिस्तान में पड़ने से रोकती है। और वो जो हवा की नमी होती है वो रेगिस्तान के लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है कि दिन में जितनी गर्मी पड़ती है उसको रात में वो ठंड में तब्दील कर देती है और इस तरह से वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो देखिए हवा की जो नमी होती है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करके रेगिस्तान को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ज़्यादा गर्म सूर्य की किरणों से, और रात में वो उस पूरे के पूरे रेगिस्तान को उतना ही ठंडा भी कर देती है और रेगिस्तान फिर से रात को ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एयर ब्लैंकेट है वो रेगिस्तान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, जो दिन में उसको गर्म रखता है तो रात में उसको ठंडा कर देता है। तो यहाँ पर एंड में ये बताया जा रहा है कि डेजर्ट हमेशा खराब ही होता है, गर्मी से भरा होता है, ऐसा नहीं है। इसकी अपनी भी खूबसूरती है, दिन में वो गर्म है तो रात में वो ठंडा है। वहाँ पर भी आपको सैंड ड्यून्स के पहाड़ दिखते हैं, वहाँ पर भी आपको ओएसिस यानी कि पानी की झील दिखती है जो रेगिस्तान से यानी कि रेत से घिरी हुई होती है। वहाँ पर भी पेड़ होते हैं, वेजिटेशंस होते हैं जिनको खाकर आप सर्वाइव कर सकते हो। वहाँ पर भी रात को ठंड होती है जिसको महसूस करके आप दिन की गर्मी को अपने शरीर से भगा सकते हो। तो डेजर्ट भी अपने आप में एक स्वर्ग है, उसकी भी अपनी एक खूबसूरती है। वहाँ पर भी जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, समय समय पर वहाँ पर मौसम गर्म है तो ठंडा है। तो डेजर्ट भी किसी हेवन से कम नहीं है। आप जाइए और वहाँ पर आप वहाँ के नेचर का, एनवायरनमेंट का आनंद लीजिए। अगर आप चाहें तो आप भारत में राजस्थान जा सकते हैं। आप आउट ऑफ इंडिया अगर डेजर्ट देखना चाहते हैं तो आप सहारा के डेजर्ट्स जा सकते हैं। तो डेजर्ट भी अपने आप में खूबसूरत होता है, यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आप लोगों को डेजर्ट क्या होता है, कैसे होता है, लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, पेड़ कैसे बनते हैं, दिन में गर्म तो रात में ठंडा कैसे होता है, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चैप्टर को पढ़िए, रिवाइज करिए, एंजॉय करिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।